So, my dear friends, today we are here again with a new thing, and today we have a listening and note making session. Now, you are familiar about this session. What we do in this session means when we have listening or note making session, you know very well what we have. Very good, Rohit. I appreciate you because you are looking ready for the notes. Very good, Shabash. All should be ready like this. Khushi is also looking in the same posture. Very good. Lakshmi is also very good. Now, many of you have started showing me your notebooks and pen in your hand so that I can just that yes, you are ready. Very good, Madhu. I have seen your pen. Very good. Shabash. So please switch on your सर मेरा cameras. Yes, I have seen. Gaurav, yes, I have already seen your pen, your copy, your everything. Yes, Sakshit, yes, you have blue colors pen. Sure, Aditya, yes. Very good. So today I am telling about the qualities which a man possesses. So that man is made up of many qualities, both good and bad. And among the latter is anger. Among the latter, matlab in bad qualities. Anger is not a good quality, it is a bad quality. So among the latter means I have talked about two qualities, good and bad. So latter means bad. That is coming later. Matlab first earlier first coming good and then coming later, then coming bad. So bad is later. Make it clear. So and among the later means among the good and bad qualities. So among the bad qualities, the worst quality is worst quality is anger. The nature of every human being is such that anything that hurts his sentiments or goes against his principles or his wish excites his anger. दोबारा भी सुनाऊंगा मैं आपको, घबराओ मत, फोकस करके रखो आप. The evils which result from anger are many, means there are so many bad results of anger. Again I am reading. The evils which result from anger are many. Under its influence, a man loses his power of reasoning and judgment. कहते हैं ना कि क्रोध जो होता है ना, व्यक्ति के बुद्धि को, व्यक्ति के विवेक को खा जाता है. जब आदमी क्रोध में होता है उसका दिमाग काम नहीं करता है. ठीक है. Not being able to keep control over himself when angry, when a person gets angry and he is not able to keep control over himself, over his anger, he does not know what he is doing or saying. Under its influence, कोशिश करोगे समझ में आएगा, फोकस होना चाहिए आपका. Under its influence, a man so much puts off his balance that he forgets his duty towards his superiors and may even go to the extent of saying things which are extremely insulting to them. When anger gets the better of men,
he is capable of committing the worst crimes, and there is nothing to be surprised if under its evil influence he commits murder. That's it. फिर से मैं आपको हिंदी में बता दूं, गुस्सा जो होता है ना, वो क्या होता है, उससे क्या असर होता है, वो क्यों होता है, फोकस करिए आप. व्हाट इज एंगर? व्हाई अ पर्सन becomes angry? What is the reason of it? And what he can do when he is angry? ये आपका थीम है जो मैंने बता दिया आपको. कोई मीनिंग पूछना चाहते हो आप? यू वांट टू आस्क एनी मीनिंग? कोई बात? दोबारा पढ़ूंगा मैं इसको अभी, फिर भी आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. एक्सटेंड मतलब एक्सटेंट, EXTENT. एक्सटेंट का मतलब हद, सीमा. दोबारा बोलूंगा फिर समझ में आएगा. एक्सट्रीमेंटली. हैं? एक्सट्रीमेंटली. एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा. सर सेंटिमेंट. भावनाएं. सर सुपीरियर. सुपीरियर का मतलब जो हमारे ऊपर है. मान लो मैं टीचर हूँ, मेरा प्रिंसिपल, समझ गए आप? जो हमारे सुपीरियर का मतलब जो हमसे ऊपर हैं, जो हमारे ऊपर हैं, हमारे बॉस हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो सुपीरियर्स. सर फॉरगेट हिज ड्यूटी का मतलब? अपनी ड्यूटी को भूल जाता है वो जब गुस्से में होता है आदमी तो. और बोलो फुर्ती के साथ, इतना टाइम नहीं. एक जना. इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव. लिख लो, INFLUENCE. इन्फ्लुएंस बहुत कॉमन वर्ड है. इन्फ्लुएंस, प्रभाव. सर रीजनिंग. रीजनिंग का मतलब तर्क, सोचने की क्षमता, तर्क. आदमी बस कर देता है जो करना है, मर्डर कर देगा गुस्से में आके, और कुछ कर देगा, और कुछ कर देगा. मतलब उसके दिमाग में ये रीजनिंग मतलब तार्किक क्षमता खत्म हो जाती है कि मैं जो सही कर रहा हूँ गलत है, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग. बाद में जब गुस्सा खत्म तब उसको पता चलता है ये मैंने क्या किया. आई किल्ड माई वाइफ, आई किल्ड माई चाइल्ड. देर आर सो मेनी केसेस लाइक दिस. समटाइम अ पर्सन किल्स हिज सुपीरियर, हिज सीनियर. बहुत बार देखा गया है ऐसा. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर. बड़े बड़े क्राइम कर देता है इंसान, जब बाद में जब उसको होश आता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया. और बोलो फटाफट से. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बोलो. सर एक्सिट. है? एक्सिट. हम्म. सर शुरू में आता है ये. सर एक्साइट्स, एक्साइट्स. सर EXCITES. एक्साइट्स. स्पेलिंग लिख लो बेटा फटाफट से. EXCITES. एक्साइट्स. उच्चारण पे भी ध्यान दो. एक्साइट्स का मतलब उत्तेजित कर देना. होता ना कई बार कोई ऐसी बात कर देता है कि हम एकदम से एक्साइट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं. हम भी उसको गाली दे देते हैं, पत्थर उठा के मार देते हैं, कुछ और कर देते हैं, लाइक दैट. और बोलो फटाफट से. रीजनिंग. रीजनिंग का मतलब मैंने बताया ना अभी काजल को. कहाँ थे आप? एक जने को अलग अलग थोड़ी बताया जाएगा. एक जना अगर कोई चीज पूछ रहा है तो सब फोकस करो उस चीज के ऊपर. आप रीजनिंग का मतलब बता देता हूं मैं, हमारी तार्किक क्षमता, सोचने की क्षमता, क्या सही है क्या गलत है, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं. फोकस करो बेटा थोड़ा आदित्य, ऐसे नहीं क्लास के साथ में चलो. एक जने ने कोई बात पूछी, सब उसके ऊपर फोकस करो आप. आगे बोलो. क्लियर हो गया? काफी हद तक क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट रीडिंग में. अब सेकंड रीडिंग कर रहा हूं मैं आपको, सुनिए आप ध्यान से, फिर भी आप लिख लेना कोई बात आए तो. मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज, both good and bad, and among the latter is anger. यानी कि जो बैड क्वालिटीज हैं उनमें एक होता है गुस्सा. बैड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी तो कह ही नहीं सकते हम इसको. द नेचर, अब क्या रीजन होता है इसका सुनिए आप. द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच दैट एनीथिंग that hurts his sentiments or
goes against his principles or his wishes excites his anger। यानी कोई भी ऐसी चीज जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है, जो उसके प्रिंसिपल के विरुद्ध हो रही है, जो उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है, कोई भी चीज अगर ऐसी हो रही है तो ये चीज क्या करती है, उसके गुस्से को एक्साइट कर देती है। द इवल्स, बुराइयां, द इवल्स विच रिजल्ट फ्रॉम एंगर आर मैनी। यानी कि गुस्से के वजह से जो बुराइयां पनपती है ना, वो बहुत सारी है। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस मैन लूजेस हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। सही गलत भूल जाता है इंसान, क्या सही है क्या गलत है। नॉट बीइंग एबल टू कीप कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ when angry, when a person angry, he is not able to keep control over his feelings, over his sentiments. He does not know, मतलब in such condition when he has no control, so in such condition he does not know what he is doing or saying। बाद में पता चलता है अरे यार क्या कर दिया मैंने। under its influence a man so much puts off his balance, खो देता है अपना बैलेंस, मानसिक संतुलन खो बैठता है, और इतना ज्यादा खो देता है that he forgets his duty towards his superiors। बॉस कोई लपड़ मार देगा, खींच के गोली मार देता है, कई बार देखा है ऐसा। छुट्टी नहीं दी आर्मी में, एक हमने पढ़ा था एक बार ऐसा, किसी सोल्जर ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, छुट्टी नहीं मिली, उसको गुस्सा आ गया और उसका जो सीनियर था उसको गोली मार दी कि ये ले। गुस्सा, क्रोध। एंड मे इवन गो टू द एक्सटेंट, इस हद तक वो जा सकता है, ऑफ सेइंग थिंग्स, ऐसी ऐसी चीजें भी कह सकता है वो, विच आर एक्सट्रीमली, वेरी मच, एक्सट्रीमली, टू मच इंसल्टिंग टू देम। समझ में आ गया? अपमानजनक बातें बोल देगा, होश तो है नहीं, वो कुछ भी बोल देगा। When anger gets the better of man, इसका मतलब क्या हुआ? When anger gets the better of man, यानी कि जब एक गुस्सा आदमी के ऊपर काबू कर लेता है। समझ गए ना इसका मतलब क्या है? यानी कि जब आदमी के ऊपर इतना गुस्सा छा जाता है कि वो गुस्सा उसको कंट्रोल में, मतलब गुस्से के कंट्रोल में आ जाता है, वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहता वो। ये मतलब है इसका, फिर से सुनो। When anger gets the better of man, यानी कि जब एक गुस्सा पूरे अधिकार के साथ एक 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 आदमी के ऊपर जब अपना अधिकार कर लेता है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ही इज कैपेबल ऑफ कमिटिंग, कमिटिंग का मतलब करने से है यहाँ पर। ही इज कैपेबल ऑफ कमिटिंग द वर्स्ट क्राइम्स। वर्स्ट, बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बुरा क्राइम्स। एंड देयर इज नथिंग to be surprised if under its evil influence he commits murder, and sometimes he commits suicide। दूसरों को भी मार देता है और कभी कभी तो खुद को भी खत्म कर लेता है इंसान, परिवार को भी खत्म कर देता है और खुद भी खत्म हो जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। और बोलो, पूछो फटाफट से। भाई मेन अपने क्या पॉइंट आएंगे इसमें? एक तो अपन बता दीजिए, देयर आर टू क्वालिटीज इन एवरी ह्यूमन बीइंग, गुड एंड बैड। और इन बैड क्वालिटीज टुडे वी टॉक्ड अबाउट एंगर। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ एंगर? पहली बात तो ये हो गई। इफ समवन हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ एनीवन, और इफ देयर आर थिंग्स which go
against a man, against the principle of man, against the wishes of a man, so that person becomes angry. बात हो गई क्यों होता है आदमी गुस्सा, ये बात हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे, ठीक है ना। तीसरे बात आ रही है कि व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ एंगर। तो क्या रिजल्ट्स होते हैं हम एंगर के? एंगर जब होता है आदमी तब क्या होता है? ही डजंट हैव एनी कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। समझ में आ गई बात? कोई कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर। ही लूजेज हिज रीजनिंग पावर, ही लूजेज हिज जजमेंट पावर, बता रहे he forgets his duties towards others, towards his family, towards his seniors, and even under the influence of anger, sometimes it goes to the extent when a man commits suicide, kills the member of his family, kills his seniors or anyone under the influence of anger. So I think it is not good. Okay, so under this influence a man can commit worst crime. ये मैंने आपको समरी भी बता दी है 2 मिनट के अंदर अंदर। क्लियर हो गई बात आपको? थैंक यू वेरी मच।